and gentlemen, now taking it forward. देखिए, एक दिग्गज को जब हम मंच पर बुलाते हैं तो उनके लिए एक भूमिका बांधनी बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी ज़रा ध्यान दें। जी हाँ, well, first of all, it is indeed my honor to introduce a man whose life and work have redefined the diamond industry and positively impacted countless lives through massive social work. Well, ladies and gentlemen, Shri Savji Bhai Dholakia, the founder and chairman of Hari Krishna Exports Private Limited, exemplifies leadership, generosity, and legacy. Starting from the humble village of Dudhala in Gujarat, his journey is one of determination, vision, and hard work. At just 12, he moved to Surat, laying the foundation for what would become Hari Krishna Exports in 1992, alongside his three brothers. From a modest diamond polishing unit, the company has grown into a billion-dollar enterprise renowned globally for excellence in diamond manufacturing and jewelry. Under his leadership, Hari Krishna Exports has established a strong presence in key markets including Surat, Mumbai, Dubai, New York, Hong Kong, and Antwerp. The company's success is remarkable with an annual turnover of $1.5 billion. Equally renowned is his generosity. Yes, ladies and gentlemen, over the years, he has gifted thousands of cars, homes, and jewelry to loyal employees as expressions of appreciation. Beyond business, his commitment to social welfare runs deep. Through the Dholakia Foundation, he has spearheaded impactful projects in environmental conservation, education, healthcare, and women's empowerment. The foundation has planted 3.2 million trees, constructed 160 lakes, provided scholarships to underprivileged students, and organized mass weddings for employees. These initiatives that have brought lasting change to communities. Well, ladies and gentlemen, in 2022, he was honored with the Padma Shri for his contributions to society and the diamond industry. He was also awarded an honorary doctorate for his remarkable contributions and serves as the lead convener of the annual Padma Awardee gathering. Recently, on October 28th, our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the Bharat Mata Sarovar, a landmark project led by Shri Savji Bhai Dholakia ji that underscores his dedication to environmental stewardship. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji also attended the wedding of Dravya and Janvi Dholakia, a memorable occasion for the family. Well, Shri Savji Bhai Dholakia ji goes beyond an entrepreneur. He is a philanthropist, a speaker, and a role model who embodies humility, compassion, and a commitment to positive change. His journey shows how vision and perseverance can inspire others to make a difference. Well, now, ladies and gentlemen, it is the time that we all put our hands together and let's welcome the visionary leader and a man who's an absolute inspiration. Giving to you, ladies and gentlemen, Shri Savji Bhai Dholakia. અને મેં સબજીભાઈને મારી આંખો સામે મોટા થતા જોયા છે. મોટા એટલે મનના મોટા થતા મેં જોયા છે. श्री सवजी भाई धनजी भाई ढोलकिया, समाज सेवा। इस जल उत्सव का आयोजन सूरत के डायमंड बिजनेस में नाम कमाने वाले सवजी भाई ढोलकिया के फाउंडेशन ने किया। अमरेली में हुए जल उत्सव के दौरान
जल संरक्षण और झीलों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई। And now, ladies and gentlemen, आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं मंच पे आप सभी के बीच श्री सावजी भाई ढोलकिया। Everybody, please put your hands together. It is an honor, sir, to have you on the stage. उज्जवल पत्नी नहीं पण उज्जवल भविष्य, उसकी सरनेम चेंज करे, उज्जवल फ्यूचर। ये आज के प्रोग्राम में रायगढ़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मैं कभी किसी को ना तो जानता था ना तो पहचानता था, लेकिन स्टील का नाम बहुत बड़ा सुना था। तो मेरे को भी इच्छा हुई, उज्जवल सर बोलते हैं तो कुछ महत्व का होगा, तो मैंने इसकी वजह से प्रोग्राम किया। ये उज्जवल पत्नी जो बोलते हैं, इतना स्मार्ट मेरे को बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा हार्टली बोलूंगा, स्मार्टली नहीं बोलूंगा। आज मैं जो कहूंगा वैसे ही आपने इंट्रोडक्शन मेरा इसके थ्रू दिलाया, इसलिए मेरे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज उसने खड़ी कर दी। तो आज मैं जो भी कहूँगा जीवन की अनुभव किया हुआ कहूँगा। मेरे पास वैसे भी स्मार्ट में नहीं बोलूँगा जैसे बताया, पर हार्टली बोलूँगा। मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, जो मैंने किया वही मैं बुलाऊँगा और वही बताऊँगा। कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर है। प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन एकदम क्लियर है। जो मैं घर पे बात करता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ, अपने से बात करता हूँ, जो अनुभव किया है वही बात करता हूँ, वही मैं बताऊँगा। और ये ही सच है। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ। मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। सफल भी हूं और सुखी भी हूं। क्यों हूं वो राज बताऊंगा। मेरे से तो काफी लोगों के पास ज्यादा पैसा है, मेरे से काफी लोग पैसे वाले हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन सुखी सबसे बड़ा हूं, ये मैं जानता हूं। मैं हैप्पी सबसे ज्यादा हूं। मैं आज आपको हैप्पी रहने की चाबी दूंगा। जो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, सक्सेस होने के लिए खुश रहना रिक्वायरमेंट है। हेलो, सक्सेस होने के लिए खुश रहना रिक्वायरमेंट है। पोजीशन कितनी भी गलत हो, कैसी भी हो, दिक्कतें कितनी भी आती हो, लेकिन हमको सक्सेस होना है तो खुश रहना पड़ेगा किसी भी हालत में। जो खुश होता है वही सक्सेस हो सकता है। आप एग्री? 100%। तो खुश रहना हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अरे अच्छी हेल्थ रखना, वो भी खुश रहना का ये हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। हेल्थ अच्छी रखने की है तो भी खुश रहना रिक्वायरमेंट है। एग्री? जो खुश नहीं होगे तो हेल्थ कभी अच्छी नहीं होगी। कितना भी बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, विश्वास नहीं होगा, कितनी भी दवा लाओ, आप तंदुरुस्त नहीं होंगे। खुश रहना, इसके लिए तंदुरुस्ती भी जरूरी है। और जो हम तंदुरुस्त है तो ही सक्सेस हो सकते हैं। ये तीनों रिक्वायरमेंट है, इसके दाव नहीं लगाना कभी भी। मैं काफी बार बोलता हूं, बच्चे को बोलता हूं, 2-3 चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी तंदुरुस्ती सही रखो। दुनिया के भाड़ में सक्सेस हो कि न हो, पहले फिट होना चाहिए,
खुद तंदुरुस्त शरीर पे हम इतना स्वार्थी बन जाए, हमारे शरीर को दांव पे लगा के कुछ भी नहीं करेगा। शरीर हमारा अच्छा होना चाहिए। दूसरा मैं बताता हूं, परिवार अच्छा होना चाहिए। हमारे से परिवार खुश होना चाहिए, हमसे परिवार खुश होना चाहिए, हम परिवार से खुश होना चाहिए। शरीर अच्छा होना चाहिए, इतना स्वार्थी बनो, शरीर अच्छा होना चाहिए। जो जाते नरिया कहवत है ना, जो खुद अच्छा है तो ही, और दूसरा परिवार अच्छा होना चाहिए। कोई भी चीज में परिवार टूटना नहीं चाहिए। और तीसरा, जो समाज को लॉस होवे ऐसा हमारा धंधा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा निर्णय नहीं होना चाहिए। राष्ट्र को लॉस हुए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेने का। राष्ट्र का लॉस होवे ऐसा कितना भी पैसा मिल जाए कोई डिसीजन नहीं लेने का। आप सक्सेस बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे, आप हैप्पी आखिर लाइफ टाइम रहेंगे, हैप्पी खुश लाइफ टाइम रहेंगे। सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट होंगे। सक्सेस होने के लिए ये 4 मुद्दा याद रखो, आप सक्सेस हो जाएंगे। ये मैंने फील किया है हमारी कंपनी में। मैंने तो बहुत अपने को जो पसंद था वो मैंने कायदा बनाया, वो मैंने नियम बनाया, वो मैंने डिसीजन लिया, मैंने किसी की नहीं सुनी। किसी की, ये लोग बोलते हैं ना, वो पिक्चर में डायलॉग आता है ना, मैंने जो थाम लिया मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक भाई को मैंने अभी रिसेंटली किया, मेरे साथ 30-40 साल काम किया, तो मैंने काफी काम आज भी कर देते हैं, मैं बोलता हूं, वो तो रिटायर्ड हो गया, एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला आपको मेरे को 5 लाख देने का है, तो आप जल्दी ले जाओ। तो बोले मेरे को क्या जरूरत नहीं है, आपने मेरे को काफी कुछ दिया हुआ है। तो मैंने बोला हर रोज मेरा काम कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है मैं फ्री क्यों काम कराऊं। तो बोला जब भी जरूरत पड़ेगी तभी ले जाऊंगा, पर अभी क्यों ले जाऊं। मैं कहा नहीं, जरूरत पड़ेगी तभी। मेरा माइंड ये काम करेगा कि नहीं करेगा मेरे को पता नहीं है। हेलो, मैं अपने आप पे भी भरोसा नहीं कर सकता हूं देने के लिए। आप समझिए, कल मेरी परिस्थिति बदल गई, मेरे चेंज कर दिया। मैं जब भी निर्णय लेता हूं तो इंस्टेंट निर्णय लेता हूं और इंस्टेंट इंप्लीमेंट करता हूं। मैं इसलिए सक्सेस हूं। मैं खाली बात नहीं करता, हम बात तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और सबको व्हाट्सएप भी भेजते हैं, पर इंप्लीमेंट नहीं करते। हम भी रिजल्ट नहीं आते, लोग सुनते हैं, लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उसको रिजल्ट आ जाता है, साला हमको नहीं आता है। हेलो, बिना इंप्लीमेंट कोई होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। आपको सक्सेस होने का, अच्छा आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई एग्री, मैं आपकी बात में सहमत हूं। बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर का प्रॉब्लम है, मंदी चल रही है, ये है, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए तो प्रोग्रेस है। प्रॉब्लम नहीं है तो कभी प्रोग्रेस होता ही नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में जितनी दिक्कत ज्यादा है, मतलब उसका भविष्य बहुत ऊंचा है। हम इतना दूर तक जाएंगे लेकिन हम लटकेंगे नहीं। मुसीबत तो आएगी, मुसीबत में के सिवा कुछ नहीं है। जैसे मुसीबत मतलब आप कार्डियोग्राम निकालने जाएंगे तो ऐसे ऐसे आएगा ना, आता अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये तो रहेगा ना। सीधा होगा तो सीधा जाएगा, सीधा गया, सीधा कुछ होता ही नहीं है और कुछ होने वाला भी नहीं है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी को टेंशन नहीं आया ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता। आपको टेंशन नहीं लेने का है तो एक छोटी सी नौकरी पकड़ लो, सुबह शाम खाना पीना खाओ और जलसा करके मर जाओ। बिना प्रॉब्लम विकास कभी नहीं होगा। प्रॉब्लम से कभी नहीं घबराने का। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जितना बड़ी चैलेंज आई इसको मैंने कभी छोड़ा नहीं है। मैं अभी रास्ते में बात करता है, कोई भी डिसीजन होता है, बुद्धिशाली होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे को पता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये निर्णय लेने ही नहीं देंगे। अरे कैसे हो सकता है ये बताने भाई, मेरे को तो ये काम है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, वो काम नहीं है। जैसे सर ने बोला ये ऐसी आइटम के साथ रहने का ही नहीं, ऐसी आइटम हमारे काम की नहीं है।
जो नहीं हो सकता है, नेगेटिव होती है, मैंने ट्राई कर लिया है, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे नसीब में नहीं है, हम छोटे गांव के हैं, हम अनपढ़ हैं, हमारे माता पिता के पास कुछ पैसा नहीं है, हमारे पास ये सपोर्ट वाला कोई नहीं है, ये हर रोज बात करते हैं ऐसी आइटम के साथ रहने का ही नहीं, इससे तो दूर रहने का। काफी बार मेरी कंपनी में भी ऐसा होता है, मैं 2-3 बार इसकी राय लेता हूं, हर बार बोलता है नहीं होता है, उसकी राय लेना बंद करता हूं। काम का आदमी नहीं हूं तो रखता हूं, काम का आदमी है तो रखता हूं, लेकिन राय लेना बंद कर दूं, क्योंकि एक दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा। जितना मैंने निर्णय लिया आज तक, जितना निर्णय लिया, सभी निर्णय गलत लिया, कोई सही निर्णय नहीं लिया है। ये रतन टाटा का मैंने बात सुनी तभी मैं मोटिवेट हुआ अपने आप से। मैंने भी सभी निर्णय गलत लिया, लेकिन सभी निर्णय सही हुआ, लोगों की दृष्टि से गलत था, इसलिए सक्सेस हूं। गलत निर्णय था लोगों की, इम्पॉसिबल था। जब भी मैंने गाड़ियां दिया 2014 में, मेरे लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज थी। इतनी बड़ी कंपनी मेरी नहीं थी जितना बड़ा मैंने सोचा था। आपको सरप्राइज लगेगी, आपको बड़ा होने का है, बड़ा सोचने का है, बड़ी बात करने का है, लेकिन बड़ा करने का नहीं है। बड़ा नहीं करने का कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी गाड़ी लिया तभी बहुत बड़ी चैलेंज थी कि एक साथ 500 कार हमने दिया था। 500 कार का बजट 52-55 करोड़ का होता था, और ना तो कोई पता था कैसे देवे कैसे नहीं। कभी इसके पहले दिया था गाड़ी तो, पर 95 में 3 कार दिया था, बाद में 12 कार दिया था, 17 कार दिया था, और बाद में सीधा 500 दिया। पहली बार 3 दिया, 12 दिया, इसके बाद 17 दिया। और गाड़ी देने का फायदा मैंने टेस्ट कर लिया था 95 में कि कितना बड़ा फायदा है, लेकिन हैसियत होवे तभी धमाका करने का है। ये थाम भी लिया था, और मैंने थाम लिया था, कभी किसी को पुनः, लेकिन जब भी दिया तभी 52 करोड़ એટલે मतलब बहुत बड़ा बजट था। और सब मीटिंग बुलानी पड़ती है ना, हम तो फैमिली बिजनेस फैमिलियर है सब, लेकिन पैसा जब भी कमाते हैं ना तभी किसी को पूछने का नहीं है, तभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन देने के टाइम सबको पूछना पड़ता है। हेलो, अरे भाई तू क्या इंटरफियर होती है, वाइफ को, बेटे को, माँ को, बापों को, भाई को, सबको पूछना पड़ता है पैसा देने के लिए। कमाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं काफी बार बोलता हूं, पैसा है ना और पैसा नहीं है, इसमें फर्क क्या है मालूम है? जिसके पास पैसा नहीं है ना, इसको एक ही प्रॉब्लम है, किसका? पैसे का। क्या? पैसा का एक ही प्रॉब्लम है। और जिसके पास पैसा है ना, इसके पास एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब प्रॉब्लम ही है। क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब प्रॉब्लम है। पैसा कमाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा मत समझना। प्रॉब्लम बढ़ेगा, पैकेज आएगा, बड़ा प्रॉब्लम का पैकेज, ईर्ष्या का आएगा, कॉम्पिटिटर का आएगा, और कमाने का आएगा। पैसा होने के बाद तो प्रॉब्लम बढ़ता है। आपको चाहिए नहीं चाहिए? हेलो बोलो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? प्रॉब्लम बढ़ता है, इसलिए पैसा खर्च करने के लिए मीटिंग करना पड़ता है। तो पैसे तो बहुत दिक्कत थी कि अगली साल क्या देंगे, और हम नहीं दे पाए, बिजनेस में नहीं टिक पाए, तो हमारा नाम क्या होगा? दुनिया क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटर क्या बोलेंगे? ऐसे इनकम टैक्स भी क्या जवाब, इनकम टैक्स को क्या जवाब देंगे? 52 कार 500 कार देने की थी, 52 करोड़ का बजट था, उसमें भी वो टैक्स आता है। कौन सा टैक्स सर आता है? गिफ्ट टैक्स। ले, गिफ्ट में दूं तेरे को टैक्स दूं? यार गिफ्ट देने का क्यों टैक्स होता है? लेकिन है, गिफ्ट टैक्स देना तो है, उसका भी पैसा 10-12 करोड़ होता था। 12 करोड़ का है, वैसे ही सरकार, मैं मेरे एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, और इसके लिए भी टैक्स भरूं। लेकिन थी चैलेंज, कैसे मैनेज करेंगे? और 52 करोड़ रुपया तो था, लेकिन ऑफिशियल पैसा चेक कहां से दूं? पैसा तो 52 करोड़ का चेक देना पड़ेगा ना। बहुत बड़ी चैलेंज थी। मैंने बोला गाड़ी देने की है, रास्ता निकालो। अभी सोचने का नहीं, देने का निर्णय फाइनल है। कुछ भी हो जाए, गाड़ी देने की है, ये निर्णय फाइनल है, रास्ता निकालो। रास्ता तो निकलता ही है।
बुद्धिशाली के पास नहीं निकलता है, दिल के वाला के पास निकलता है। हेलो, जिसको देने की भावना है ना, इसके पास रास्ता निकलता। भगवान इनर, अंदर से स्फुरना करता है, अंदर से थॉट निकलता है, अंदर से आइडिया आ जाता है। देने की भावना है, पहले सोचना चालू करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देने का निर्णय ले लो, मिलना अपने आप चालू हो जाएगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और हमने दिया बहुत बड़ी। ये एक खाली गाड़ी कैसे दिया, उसकी प्रोसेस, इसका सिस्टम समझाने में घंटा जाएगा। मैं आपको ये टेलर बता रहा हूं, डिटेल में काफी बार मैं बोल चुका हूं। तो गाड़ी देने से दुनिया में मेरे को लोग जानते हैं, पैसा कमाने से नहीं जानते हैं। जो गाड़ी दिया, इसके बाद जो कंपनी का रिजल्ट आया, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। इतने लोग मोटिवेट हुए, एक साथ लोगों को बुला के पूरी फैक्ट्री का मीटिंग रखा, लास्ट मीटिंग रखा, फैमिली के साथ बुलाया और एक एक लोगों का साल का जो परफॉर्मेंस बेस्ट था, जो क्वालिफायर हो रहे थे गाड़ी के लिए, उसका अलाउंस किया और पूरा फैमिली देखते थे और इतना खुश थे। एक आंख में खुशी का आंसू था, एक आंख में मैंने खुशी देखी है और एक आंख में नी मिलने का गम भी देखा है। नी मिली थी, उसको भी आंसू तो आ गया था, हमको नहीं मिली। वाइफ बोले आपको नहीं मिला। हेलो, बेटे बोले पापा आपको नहीं मिला। पापा बोले क्या, मैं बहुत स्किल वाला नहीं हूं, ऐसे बोले। मेरे पास आवड़क कम है, वैसे बोले। मैं कमजोर आदमी हूं, वैसा बोले। ना बेटा, अगली साल मिलेगा, हमको अगली साल मिलने वाला है। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, अगली साल 1700 क्वालिफायर हुए। कितना प्रोडक्शन आ गया होगा, कितनी क्वालिटी अब हो गई होगी। और जो कैपेबल लोग था अपने आप आना चालू हो गया। माइग्रेंट पक्षी जब भी पानी होता है ना, वहां चले जाते हैं। हेलो, दुनिया में कहां भी पानी है वहां ही पक्षी जाते हैं, जब भी पानी कहां नहीं मिलता है। ऐसे ही गांव के लोग जो हमारे से दूसरी कंपनी में चले जा रहे थे, वो आना चालू हो गया। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट वो टाइम पे थी, वही प्रोडक्शन कॉस्ट आज भी है। और वो टाइम पे जो थी वही प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारी 15-20 हजार सैलरी से हमने कंपनी स्टार्ट किया था। आज 1 लाख से 10,000 15,000 सैलरी पर पर्सन की है, सेम प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंक्लूडिंग गाड़ियां, इंक्लूडिंग खाना। हमारे यहाँ 9,000 लोगों का रोज सेम खाना बनता है। सऊजी भाई भी सेम, पत्नी आवे तो वो भी सेम, और हमारा एम्प्लॉय, हॉस्टमैन सब सेम खाना खाते हैं। जो देने की भावना, ये मैं जो मेरे पास, मैं काफी बार बोला हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, सही में मेरे को कुछ नहीं आता। और मैं ना तो कुछ जानता नहीं हूं। मैं इतना ही जानता हूं, कौन हमारी कंपनी में जानता है ये मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। आप समझे कि नहीं? जो समझदार है, मैंने पूरा धंधा अपनी सेकंड जनरेशन को दे दिया। मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी क्या जिम्मेदारी मालूम है? मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, वही मेरी जिम्मेदारी। हेलो, हम लोग सलाह कैर चली जाती है, 60 साल के, 70 साल के, 75 साल के हो जाते हैं, पावर बेटे को नहीं देते। तेरे को नहीं पता, बुढ़ा हो जाए बेटा को साथ में ही नहीं रखते। तेरे का क्या काम है, तू ऑफिस पे रहे। मैं जहां जाता हूं बेटे को साथ में लेके जाता हूं, वो 4-5 आदमी को लेके साथ में जाता हूं, जो मेरे नजदीक के होते हैं, मेरे जो परमानेंट हेल्पर होते हैं, कि जो काम में लगते हैं। कोई भी मेरे साथ रहता है, एक दिन का काम बिगड़ेगा, पूरी साल का काम हो जाएगा। हेलो, हम लोग अपने नजदीक के लोग के साथ नहीं रहते, बेटे को साथ में नहीं रखते। कहां से बेटा तैयार होगा, कहां से पावर आएगा? कितना भी मोटिवेशन दो, कितना भी पढ़ाओ, हार्वर्ड में ले जाओ। मैंने अभी रिसेंटली पता, हम लोग फैक्ट्री में खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, हम तो हैप्पी रहे, कभी हम हमारा एम्प्लॉय को हैप्पी रखे, हमारे मैनेजर को हैप्पी रखे, हमारे पड़ोसी को हैप्पी रखे, गांव को हैप्पी रखे, हमारे समाज को हैप्पी रखे, तभी हम हैप्पी रह पाएंगे। सक्सेस होने के लिए और सुखी होने के लिए
सक्सेस तो हो सकता है, लेकिन सुखी होने की कोई गारंटी नहीं है। जो हैप्पीनेस सबको बांटो तो सुखी और सक्सेस दोनों हो जाएंगे। हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम लगता है, लेकिन हम लोग गाड़िया का सिवा काफ़ी प्रोग्राम करते हैं एम्प्लॉय के लिए। खाना क्वालिटी वाला हो गया, एम्प्लॉय के लिए हम लोग मंथली एक प्रोग्राम, अरे ईयरली एक प्रोग्राम पिकनिक का करते हैं, कितना भी खर्चा क्यों ना आवे वो प्रोग्राम करते हैं। एक माँ बाप का प्रोग्राम करते हैं ईयरली, एक सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ काम करता है, इसका माँ बाप का। अब ये एमबीए को बीबीए को ये बैठता है चार्टर अकाउंट को, माँ बाप को क्यों ले जाने का है? कंपनी में क्या माँ बाप का रोल है? हम नहीं ले जाएंगे, बहुत बड़ा रोल है। माँ बाप की यात्रा कराता है, माँ बाप की यात्रा हो गई खत्म, अभी हम मदर इन लॉ फादर इन लॉ को ले जाते हैं। आपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ का क्या काम है? हाउस वाइफ है, उसका माँ बाप गांव में है, वो इधर काम कर रहा है, उसका ससुरा और सासू की यात्रा का बिजनेस में क्या मतलब है? बीबीए को, ऑडिटर को, सीएसआर को ये कुछ नहीं बैठेगा, ये नहीं काम का, लेकिन बहुत बड़ा काम का है। लगता है मालूम है, बेटी के लिए, बेटी का रेफरेंस से बाप को यात्रा में जाने का अवसर मिलता है, बाप कितना खुश होता है और बेटी कितनी खुश होती है। जब घर में बेटी खुश होती है तो हस्बैंड को कितनी शांति रहती है, माँ बाप के साथ वो कितनी जुल मिल के रहती है और घर में इतनी सारी संभाल लेती है, तभी वो शंभू हमारे यहाँ काम पे आता है तो वो तभी खुश रहता है, तो काम कितना अच्छा होता है। हेलो, ये छोटी सी यात्रा का, और आपको इससे आगे बताऊं, कंपनी में कभी प्रॉब्लम आया, कभी हताश हुआ, निराश हुआ, कंपनी छोड़ने का इरादा कर लिया, घर पे जाके फिर वो तीनों मिलके, सासू ससुरा मिलके चुप, कंपनी नहीं छोड़ने का, बिना पूछे। माँ बाप मना बोले, वाइफ मना बोले, सासू ससुरा मना बोले, भाई कहां जावे। हेलो, ये छोटा सा आइडिया बहुत बड़ा स्वरूप लेता है। इतना 10 साल 15 साल पुराना एम्प्लॉय हो गया और वो उसके पास से हमने अभी आउटपुट लेना अभी शुरू होता है और हम वो छोड़ दे तो कितना बड़ा नुकसान होता है। हमारे यहाँ काम भी दिल से करते हैं, एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं, बिल से नहीं, दिल से, और हमको बेनिफिट भी दिल से मिलते हैं और हम लोग उसको रिटर्न भी दिल से देते हैं। भगवान भी हमको दिल से देते हैं, कोई बाकी नहीं रखता है। हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ बड़ा बनने का है, बड़ा सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और निर्णय फास्ट लेने का। निर्णय बाद में हम हनुमान जी को प्रार्थना करते रहे पूरी लाइफ के 1 डब्बा तेल चढ़ाऊंगा, मेरे पास जब 100 डब्बा हो जाएगा। हनुमान जी बोले, साला तेरे को 1 डब्बा के लिए मैं 100 डब्बा दूं, मैं स्विमिंग पूल करके घर पे नहीं नहाऊं 100 डब्बा लाके, साला तेरे तेल पे मैं बैठा हूं। हम सौदा करते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं होती है, देना चालू करो, अपने आप मिलना चालू हो जाएंगे और मेरे को मिला है। इसके आगे बढ़ता हूं तो मैं सीएसआर की तो हमको पता ही नहीं था। काफी बार ऐसा होता था, काफी विजिटर आता था कि आपकी एचआर हेड कौन है, एचआर हेड कौन है। एचआर लोग क्या करते हैं, 10 साल पहले हमारा ये स्वभाव रहा, एचआर वाले क्या करते हैं, तो बोला ये करते हैं, ये करते हैं, ये सब रिक्रूटमेंट करते हैं, इतनी फैसिलिटी, ये ध्यान देते हैं इसकी। मैं बोला ये तो मैं करता हूँ, तो एचआर हेड तो मैं हुआ, ये सब सीखा, मैं ध्यान रखता हूँ। कंपनी में एचआर हम लाए नहीं, एचआर के थ्रू हमने धंधा किया, बिजनेस किया और सभी हैप्पी है। एम्प्लॉय देखे हमारा एक एम्प्लॉय के मैं 1 महीनों नहीं मिलूँ तो वो लोग रिक्वायर रखते हैं कि 1 मीटिंग काका ले लो, हमारी बैटरी डाउन हो गई है। 15 साल से 12 महीने में 12 मीटिंग, 15 साल में कैलकुलेशन करना, घर पे जाते 12 मीटिंग 1 साल की और 15 साल इतनी मीटिंग किया, तो भी वो लोगों को आज भी बोलते हैं महीने के बाद, चाचा 1 मीटिंग ले लो, हमारी बैटरी चार्जिंग हो गई। वो लोग भी क्यों, मैं उसको प्रेम करता हूं, मैं उसको बेटे की तरह रखता हूं। अपना बेटा रखे कि नहीं रखे, मेरे पास 9000 बेटा है। हेलो,
18,000 हाथ है, 18,000 आंख है, कंपनी का कोई बाल बाका नहीं कर सके। हमारे साथ 9,000 लोगों का भविष्य छुपा हुआ है, 9,000 लोगों का सुख छुपा हुआ है। भगवान को भी निर्णय बदलना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है जो हम हमारे एम्प्लॉय का ध्यान रखे, पड़ोसी का और राष्ट्र का। मैंने हमारा सपना देखा हुआ है। अभी मैंने रिसेंटली, आप बोलेंगे तो समझो, मैंने हमारा CSR के रूप में तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन हमने जो सरोवर का काम किया, 160 सरोवर बनाया 7 साल में। 160 सरोवर बनाया। जो नदी मर चुकी थी वो 35 किलोमीटर में जिंदा किया। और वहां ये सुपरवाइजर, मैनेजर, हेड, एडवाइजर, इंजीनियर, सब कुछ मैं डोरी लगाता हूं। सुबह 7 बजे जाता हूं और बस इतने से ये काटो, इतने से ये काटो, इधर से मशीन इधर स्टार्ट करो, इधर से इधर स्टार्ट करो। कोई इंजीनियर आर्टिस्ट नहीं है, सीधा ड्राइवर। और मैं काम बता के आता हूं, 1 वीक में फिर से काम बताने जाता हूं। हर वीक में 2 दिन जाता हूं। 200 लोगों काम कर रहा है और मैं वहां पे 18 घंटा काम करता हूं। आज भी 62 साल की एज के बावजूद बेटा आता है, साथ में एक बेटे को वहां भी ले जाता हूं। चल तेरा बाप क्या कर रहा है। ऐसा ही नहीं होता है, लोग ऐसा ही प्रेम नहीं करते। 18 घंटा काम किया, मेरा क्वालिटी वहां भी वही है और वहां भी वही है। ये काम करने की वजह से मेरे को पद्मश्री मिला। मैंने पद्मश्री एप्लीकेशन नहीं किया है, ना तो मैंने मांगा नहीं है। ये बाय प्रोडक्ट है, सम्मान बाय प्रोडक्ट है। पद्मश्री तो मिला, इसके बाद भी मैंने काम चालू रखा, बंद नहीं किया। अभी रिसेंटली 28 तारीख को जो नरेंद्र भाई आया था शादी में और भारत माता का सरोवर में, वो भी पानी की वजह से आया था, देने की वजह से आया। बेटे ने बहुत बड़ा सवाल किया कि लोग आपको, बापूजी छोटे भैया का बेटा है, बापूजी आपको हित इधर बैठा है, किधर गया हित? हित हित आया आया हित। वो बोले बापूजी आपको क्या लगता है उज्जवल सर, बेटे भी काफी बार सवाल करता है, आपको क्या लगता है, आपको इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? बात तो सही है। एक छोटी बेटी आती है ना काफी बार मेरे साथ, मैं वाइफ को भी लेके आता हूं, लेकिन आज वाइफ को नहीं लाया, नकर मेरी वाइफ साथ में होती है, बेटा साथ में होता है, कोई भी साथ में होता है। तो बेटी बोले पापा दादाजी आपके साथ सब क्यों फोटो क्यों खिंचवाते हैं? इसको तो पता नहीं है दादाजी के पास क्यों, घर में तो कोई दादाजी का कोई होता नहीं है, ये तो यही है, क्यों फोटो खिंचवाते हैं? बेटे काफी बार सवाल करते हैं। इतने सवाल किया, ये सब मान सम्मान क्यों मिल रहा है भाई? पैसा बहुत कमाया इसलिए, पैसा दान किया इसलिए, क्या है वजह, क्या है इतना प्रेम मिलने की? करके हमारे से पैसे वाला ज्यादा है, काफी लोग, इतना प्रेम नहीं मिलता है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं पैसे। और हमारे से दान भी काफी लोगों ने ज्यादा किया है, तो भी उसका इतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना हमारा रिस्पेक्ट है। मैंने बोला ये दोनों बात सही है, लेकिन हमने तीसरा किया, पैसा भी कमाया, दान भी किया और लोगों को दिल खोल के दिया भी, और जो चैरिटी सोशल काम किया वो खुद से किया, पैसा देके करवाया नहीं। इसके लिए लोग प्रेम कर रहे हैं। हम यात्रा कराते हैं तो खाली माँ बाप नहीं जाते, 15 दिन मैं साथ में जाता हूँ। उज्जवल पटनी जैसे लोगों को वहां लाके मोटिवेट कराता हूँ कि आपका बेटा कितना अच्छा है, उसका ऋण हम लोग स्वीकार करते हैं, इसके लिए आपको ये यात्रा का बेनिफिट मिला है। तो ये घर में उसको सुख बांट रहे हैं, पैसा नहीं। वो घर का कितना एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा कि बेटे की वजह से हमको यात्रा मिली। बेटे का घर में कोई मान नहीं होता है, उसका घर में उसका सम्मान बढ़ जाता है, ससुरा के वहाँ सम्मान बढ़ जाता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है, और काम में जी लगा के, दिल लगा के, जान लगा के काम करता है। जब भी जान लगा के काम करता है ना हमारा फौजी, आर्मी, तभी हम सुरक्षित घर में सोए हुए हैं। वैसे हम 9,000 लोग हैं ना, वो मेहनत करते हैं। हम 4 भाई हैं, चारों भाई का टोटल लगावे पढ़ाई में तो भी ग्रेजुएट नहीं होते। हेलो,
फिर क्यों, तो इतना बड़ा क्यों बिजनेस है? सोच की वजह से, देने की वजह से। मैं काफी बार बच्चे को बोलता हूं, एड में खर्चा मत करो, एडवर्टाइज में खर्चा नहीं करने का है। काम ऐसा करो एड हो जाए, आपका नाम लेना ही पड़े, आपका एग्जाम्पल देना ही पड़े। मैंने सबको बताया है, हमने तो 12 रुपया सूरत से गांव से आए थे, तभी जेब में 12 रुपया था, 12 रुपया की टिकट थी, 25 रुपया पूरी टिकट का था। मैं 13 साल का था, आधा साल झूठ बोला, 12 साल बोला, એટલે आधी टिकट में आया, 12 रुपया टिकट में सूरत आया, और इसके सिवा कुछ जेब में नहीं था। अभी 12 से 15 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट है। अब आप लगाओ, आपको क्या करना चाहिए? टारगेट दे दिया है आपको, 12 रुपये से 12 हजार में पहुंचा, बिना पढ़ाई, बिना परिचय, बिना पैसा, बिना कोई सपोर्ट। आज आपके पास नाम भी है, प्लेटफॉर्म भी है, पैसा भी है, और इतना पढ़ाया भी है अमेरिका में। आपको तय करने का है, 8 भाई है, हम 4 है, हमको, हमारे को 8 बेटा है, 4 भाई का मिलके 8 आप नक्की करो कि आपको 40 साल, मेरे को लगा 48 साल लगा, 40 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, 40 साल लगा बिजनेस में। आप 40 साल में आप क्या कर सकते हो और आपको कहां पहुंचना चाहिए, आप तय करो। जो मेरी लिमिट क्रॉस करना, मैं आपको सैल्यूट मारूंगा। यह सपना दिया है, मेरा भी सपना है। अभी तो मेरा सपना नहीं शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। हेलो, अभी मेरा सपना अभी स्टार्ट होता है। मेरा 62 साल हुआ, 100 साल जीने का है। हेलो, 40 साल, 102 साल जीने का। अभी मैंने एक कोर्स कर रहा हूं तो 25 बढ़ा दिया है, वो बाद में बात बदलूंगा। 125 की लिमिट अभी कर ली है, 2 महीने से एक ऐसा कोर्स कर रहा हूं 25 साल बढ़ाने का। हेलो, 25 साल कैसे बढ़ावे? बिना टैबलेट, बिना मेडिकल, कोई दवाई के बिना जीने का है, तंदुरुस्त जीने का है। वो मैं टेक्निक हमारे पास 100% आ जाएगी, बाद में शेयर करूंगा। लेकिन 125 साल जीना, 100 साल काम करना, 25 साल मैंने काम किया, उसका एंजॉय करने का है। 400 साल का काम करके मरने का है। इतना स्पीडी और इतना हायर काम करना है। कितना? 40 साल में 400 साल का। आप देखो, ये मेरा सपना है, ये गोल है, तो आप सबका ही थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद तो मिलेगा ना। हेलो, तो भगवान का काम करने वाला हूं। भगवान का क्या? नेचर का, एनवायरमेंट का और नेशन, राष्ट्र का। इसके सिवा मेरा कोई काम नहीं है, व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। राष्ट्र के लिए जीने का है, राष्ट्र के लिए करने का है। और जो मैंने कमाया, बेटे को बता दिया है, बेटा साथ में 2 है, बेटे को बता दिया है, जो मैंने कमाया है वो तो मैं खर्चा करके मरने वाला हूं। तेरे को एडवांटेज लेना है तो पैसा कमाना चालू कर दे, तू पैसे वाला हो जा। बाकी तेरा बाप छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो छोड़ के जाएगा। इसका बेटा कभी पैसे वाला नहीं हो सकता। खुद को कैपेबल बना के जाओ, ये मेरा सपना है। आप मानते हैं कि साकार होगा? ये भगवान की जिम्मेदारी है सक्सेस का। समझो, आप घबराने का मत, बीच में चला गया तो टेंशन मत लेने का। भगवान को मेरी वहां ज्यादा जरूरत होगी। हेलो, जो जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां रखेंगे। क्या के मुकेश अंबानी के वहां अनंत अंबानी की शादी हुई है, और जो गड़बड़ कुछ हुई ले गए, तो वहां ही जन्म मिलेगा, मेरा प्रमोशन रेडी होगा। हेलो, क्योंकि करके ऐसा करके जाने का है। नरेंद्र भाई जो इधर बच गया, तो नरेंद्र भाई भी रिटायर्ड तो हो गए। हेलो, वहां प्रमोशन मिलेगा। काम ऐसा करने का है कि दुनिया याद करे, फरियाद नहीं, फरी फरी याद करे। ऐसा काम करके मरने का है। समझो, ये सपना साकार होगा न? नहीं होगा तो भी टेंशन नहीं है। बेटा है 25 साल का, 27 साल का, बाप 85 साल का। हम 63 लोगों एक किचन पे, एक अकाउंट पे रहते हैं। किसी का बजट नक्की नहीं किया है, ये हमारा रूल्स है। काफी बार ऐसा होता है, बाप नहीं मानते हैं, काफी बार बेटा भी नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम तो हमको भी आता है। बेटे को पढ़ा लिखा के
बड़ा बनाया, और बात तो वास्तविकता है, और एज डिफरेंस रहेगा। मैं अभण आदमी हूँ, बेटा आज आया बोला कि मेरे को डायमंड में नहीं आना। अरे भाई तेरा बाप इतना डायमंड में मास्टर है, टॉप 5 में आता है, पूरे को दुनिया को सलाह देता है, बेस्ट बिजनेस है ये है, और मेरा बेटा बिजनेस में नहीं आवे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत मेहनत किया, नहीं आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मैं खाली बात करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ। मेरे को बेटे को फ्रीडम देना चाहिए, हैज ए बेस्ट बाप के हिसाब से। हमारा 5 सूत्र है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, टुडे इज माई न्यू डे। तो मेरे को भी लागू पड़े ना, आई एम द बेस्ट फादर है, बेस्ट बेटा भी है। काफ़ी बार बाप भी नहीं मानते, 85 का है, मेरे से 10 टाइम गर्म होगा ना, मैं तो गर्म हूँ, तो वो भी नहीं मानते। अपने को तो मस्त रहने का है, बाप माने या नहीं माने, बेटा माने कि नहीं माने, हमको तो खुश रहने का है, हैप्पी रहने का है, आगे जाने का है। माने या नहीं माने ऐसी कोई हमारी गारंटी नहीं है, वो उसका जवाब है। लेकिन हम दोनों के साथ मस्ती से रहेंगे, दोनों का मानेंगे, दोनों को कन्विंस करेंगे। नहीं माने तो भी हैप्पीनेस के साथ बर्ताव करेंगे, क्योंकि आई एम द बेस्ट, मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूं, मेरे को बेस्ट के सिवा नहीं। मैं आई एम द बिजनेस करूंगा बेस्ट, दूंगा बेस्ट, वर्तन बेस्ट, जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। ये विजन होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए। सब आपके पीछे दौड़ेगी, सब चीज आपके पास आएगी। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। एक स्टील इंडस्ट्री उतना बड़ा कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बड़ा आदमी के पास कम अपॉर्चुनिटी है। आप तो छोटे ही है, आपको सब कुछ करना है, बड़ा ही वो करना है, अब तो आगे ही जाने वाले। छोटे बेटा क्या करेगा, मेरी चैलेंज तो देखो, मैं खुश रहूंगा। बेटे को कितनी बड़ी चैलेंज दिया है मैंने, 12 रुपया से 12,000 करोड़ का, अभी 8 लोग है, करो। इसको ज्यादा प्रॉब्लम मेरे के, पूरी लाइफ लड़ना पड़ेगा, रात के दिन मेहनत करता है। अरे मेरे साथ आने वाला था बेटा और बहू, बोला यार पापा मेरे दोस्त की शादी है तो मैं नहीं रहूंगा, मेरा ये मेरा, तू तेरा काम कर। आया तो भी भला, नहीं आया तो भी भला, हमारा तो हमारी क्वालिटी रहेगी। हम तो मस्ती से जिएंगे, मस्ती से देंगे, मस्ती से बिजनेस करेंगे। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए 100% अपना देने का है। हमारा 100% हम जब भी देते हैं तो नेचर का, कुदरत का कानून है, वो हमको भी 100% देता है। हम क्यों देते हैं ज्यादा, हमको ज्यादा चाहिए। हम क्यों ज्यादा डोनेशन करते हैं, हमको ज्यादा चाहिए। हमारा रूल्स है, माँ बाप का सबको सुना हुआ है, एक बीज बोएंगे 100 मिलेगा। हम तो पक्का व्यापारी है, आपसे ही सीखे, अग्रवाल से, हेलो मारवाड़ी से ही सीखे। हम तो काठियावाड़ से, वो खेड़ूत थे, कहाँ से आया, आपसे ही सीखे। 1000 घना मिलता है देने से। देना चालू कर दो, दुनिया आपका नाम लेना चालू हो जाएगी। देना बंद किया, मेरे को कुछ मिले तो भगवान भी बोले बेटा तेरे से मैं बहुत होशियार हूं, तेरे जैसा तो धरती पे काफी लोग भेजा है, मैं तेरे को जानता हूं। जब भी हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, हमारा सपना क्लियर है, हमारा मकसद क्लियर है, तो नेचर को जब भी पता चल जाएगा। इतना ट्रांसपेरेंसी आदमी ने है, आप जो चाहेंगे सब कुछ होगा। ये मेरी लाइफ में हुआ है, मैंने ये अचीव किया है। और लास्ट, और मैं छली बात बता के मेरी बात खत्म करूंगा। किसी को सवाल है तो करना, मैं 10-15 मिनट सवाल जवाब दूंगा, क्योंकि आपकी पीड़ा मैं जानता हूं। मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। हेलो, और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि दुनिया में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी तक पैदा ही नहीं हुआ प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं दूंगा। मैं जो ये प्रेजेंटेशन वाले को ये नहीं होता है, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं था, એટલે मेरी छेल्ली बात मिस हो गई, अभी याद आ जाएगी। लेकिन लास्ट मेरा सपना है, आ गई। लास्ट मेरा गोल है, सपना है, जब भी जावे ये दुनिया छोड़ के। मैंने काफी लोगों से राय लिया है, 99% को मरने के टाइम रिग्रेट होता है। यस सर, 99 क्यों पछताते हैं, क्यों अफसोस होता है, क्यों ऐसा होता है कि मरने के टाइम ऐसा रिग्रेट क्यों होता है, काश मैंने ये किया, काश ये कहना रह गया, ये करना रह गया, आई डोंट नो। लेकिन मैंने कहाँ भी सुना है, एक हॉस्पिटल में, एक किसी सर से सुना होगा, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल है कि वहाँ नोजो
लास्ट 15 दिन जिसका बचा है वो पेशेंट वो नर्स के पास आते थे। मरने के टाइम 15 दिन बचा, विदेश में हॉस्पिटल में मरने के टाइम 15 दिन बचा था, उसके पास बिलियनर हो ट्रिलियनर हो के सिंपल आदमी उसके पास वहाँ हॉस्पिटल में जाते थे मरने के 15 दिन। सभी में से 99 लोगों का यही प्रॉब्लम था, रिग्रेट का। काश मैंने ये किया, काश बेटे से संबंध सुधार लिया, काश पड़ोसी से संबंध लिया, वाइफ को सम्मान नहीं दिया, ऐसा वाइफ के साथ त्रास गुजारा, पड़ोसी के साथ, काश मैंने राष्ट्र के लिए समाज के लिए कुछ भी मैंने, ये रिग्रेट रहता है 99% लोगों का। रोते रोते मरते हैं। हमने गोल सपना नक्की किया है, अपने को रोते रोते नहीं मरने का है, हंसते हंसते मरने का है। और हंसते हंसते मरने के लिए अभी क्या करना चाहिए, वो करना स्टार्ट करो। दुनिया मेरा क्या बात करेगा, मरने के बाद अभी करना चालू करो। हमारी खुशी हमारे हाथ में है, हमारा एंड भी हमारे हाथ में है। हम सब भगवान की एक बोनस रूपी ये धरती पे आए हैं और आज हमारे पास 2025 मतलब हमारी गुजराती कहावत है, मोहाल मेहमान गति ने मां पीरसनारी। सरकार का भी इतना सपोर्ट है, समाज का भी इतना सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी का भी इतना सपोर्ट है। जिसके पास आइडिया मिल गया फाइनेंस करना, हमारा बेटा फाइनेंस का करता है, जो छोटे छोटे आइडिया को वो स्टार्टअप को पैसा दे रहा है। पैसे हमारे पास, मैंने 10,000 रुपया ब्याज पे लेने के लिए 1 महीना सूरत में मैं घुमा था और मेरी मदर की वजह से 10,000 किसी ने मेरे को ब्याज पे दिया था। तो आज को किसी को भी पैसा चाहिए, आइडिया अच्छा है पैसा मिल जाएगा, आइडिया नहीं है बंदा अच्छा है पैसा मिल जाएगा। आपको दोनों में से एक तो बनना ही पड़ेगा, बिना कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको सब कुछ मिल जाए, सब भगवान आपको सब कुछ दे दे, ऐसी शुभकामना के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। मेरे को लगता है आपको जो भी बात पसंद आई जीवन में उतारना चालू करेंगे। डोंट वरी, आपकी सफलता होनी चालू हो जाएंगे। 2025 आपका खूब सारा जाए, ऐसी शुभकामना करके। अपने पास लीडर बहुत बड़ा है, उसने विकसित भारत का सपना देखा है। विकसित भारत का सपना मतलब बहुत बड़ा सपना देखा है। इसका हिस्सेदार हम बने, इसका सपोर्टर हम बने और हम साथ मिलके कैसे हमको देश को मजबूत करें, समाज को मजबूत करें, हमारे राष्ट्र को मजबूत करें, हमारे परिवार को मजबूत करें और खुद कैसे मजबूत रहे, ऐसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड लक, आभार, भारत माता की जय। मंच पर बने रहे, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर थैंक यू सो मच अपने शब्दों से हमें इंस्पायर करने के लिए, अपने अनुभव से हमें लर्निंग्स देने के लिए और वो भी बहुत ही रोमांचक अंदाज में। धन्यवाद। एंड नाउ वंस अगेन मैं प्लीज रिक्वेस्ट Dr. Ujjwal Patni to kindly join us on the stage. Also, अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो yes, the floor is open for questions. सर आपने कहा ना कि हर सवाल का जवाब है। Ladies and gentlemen, the floor is open for questions. आप प्लीज अपना हाथ रेज करें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। यस, वी हैव अ क्वेश्चन देयर, वी आर गेटिंग द माइक फॉर यू सर। जी, राम राम सब्जी भाई ढोलकिया जी, राम राम उज्जवल पाटनी जी। मैं अमित गुप्ता कासनिया, गुड़गांव, हरियाणा से। मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों मेडिटेशन के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं बहुत ट्राई करता हूँ मेडिटेशन करने की, मेरे से हो नहीं पाता, दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ता है। उसको शांत करने के लिए या मेडिटेशन के लिए आप दोनों क्या करते हैं? थैंक यू। ये मेडिटेशन का मामला अच्छा है, आप सही रास्ते पे है। मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, ये इसका मतलब यही है कि आपकी प्रोसेस चालू है। ट्राई करते रहो, हारना मत, छोड़ना मत, रास्ता भी बदलना मत। बहुत बड़ा ये आपका दिमाग में सोच आया है, जो आपकी बात से दूसरा पकड़ लेगा तो उसको फायदा होगा। आप मेडिटेशन की बात करते रहेंगे, मेडिटेशन का रूल्स ही है तो खराब थॉट्स आना चालू हो ही जाता है। हमारे पूर्व जन्म का भी एक हिस्सा है
जो हमारे पे नेगेटिविटी आती है, इसकी वजह से ध्यान नहीं लगता है, लेकिन ध्यान लगना चालू हो जाएगा तो ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। थैंक यू। जी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त मैं जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट को या टॉप अचीवर्स को, सोशल अचीवर्स को, जिनको भी कहीं भी कोच कर रहा हूँ, जिनकी फैमिलीज को एडवाइस दे रहा हूँ, हर फैमिली में मेडिटेशन ऑलमोस्ट अनिवार्य है। इवन यंग अचीवर्स, यदि आप राहुल बजाज को देखेंगे तो वो दिन में 3.5 घंटा मेडिटेट करते हैं नारायण कृष्ण मूर्ति पद्धति से। नारायण मूर्ति को आप देखेंगे तो दिन में 1.5 घंटा मेडिटेट करते हैं। इवन यंग स्टार्टअप फाउंडर्स, मैं किरण बेदी के साथ बहुत सारे ज्वाइंट लेक्चर करता था, वो किसी भी हाल में मॉर्निंग का सेशन खुद नहीं लेती थी क्योंकि उनको 1.5 घंटा मेडिटेट करना चाहिए। यहाँ स्टेज से इतने कम समय में मेडिटेशन कैसे करना ये बताना कठिन होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स डेमोन्स्ट्रेशन। पर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एज ग्रुप्स के लोग हैं, यदि आपको लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स चाहिए, ये जो बात कर रहे हैं ये तो जीवन ही मेडिटेशन की तरह जी रहे हैं, इनका हर दिन मेडिटेशन है। तो यदि आपको बड़ी अचीवमेंट चाहिए, आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अहम हिस्सा बनाना चाहिए। इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। हम लोगों ने घर में 18 लोगों ने विपश्यना की शिविर 1, 2, 3, 4 किया है। 12 दिन का जो मौन होता है ना, आप एक बार 12 दिन में चले जाओ, सभी विचार जीरो हो जाएगा। जब हम न्यूटन हो जाएंगे, क्रिएटिविटी चालू हो जाएगी। थैंक यू। सावजी भाई, रायपुर की धरती में आपको यहाँ पाकर रायपुर की धरती अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही है। मेरा सवाल यह है कि किंग भी हो गया। हेलो, माँ ने बोला तेरा तीनों सपना खत्म हुआ, अभी मेरा सपना स्टार्ट होता है। 40 साल के बाद जो देखा, 400 साल का काम करना, वो मेरा सपना है। अभी तक तो माँ का सपना मैंने पूरा किया, मेरा कोई सपना नहीं था। मेरा सपना यही था, मेरी माँ का सपना था वही। मैं सबको बताता हूँ, माई रोडल मॉ इज माई मदर। मारी प्रेरणा स्रोत, मारो रोल मॉडल, माई mother in my wife also. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. And now may I please invite Mr. Amit Agarwal, Managing Director, Hira Steels, to kindly join us on the stage for presenting a memento of appreciation and love to Mr. Savji Bhai Dholakia, founder, Hare Krishna Exports Private Limited. आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं एक बार. Also, may I please request Mr. Baki Bihari, Managing Director, Lakshmi Kripa Ispat, to kindly join us on the stage for presenting a memento to Mr. Ujjwal Patni, motivational speaker and business coach. Ladies and gentlemen, जरा तालियों के साथ, come on please. एक सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि सर हमारे साथ स्टेज पे जुड़े हुए हैं. So thank you so much. मंच पर पधारने के लिए आपका धन्यवाद. Ladies and gentlemen, it's time to move on for lunch. आप सभी को बताना चाहूंगी कि लंच बाहर है, बाहर आप जाएंगे, राइट लेंगे, go towards your right, और वहाँ पे आप देखेंगे फूड अरीना. तो फूड अरीना में जाएं, have your lunch, have a good lunch, and I'll see you back. We all will see you back for the next session at 3 p.m. Requesting all of you कि please वापस जुड़ जाएं हमारे साथ 3 बजे for the next session. Thank you.